نہ مجھے مجلس اتحاد المسلمین میں کوئی عہدہ چاہیے بھائی، نہ میری خواہش ہے، نہ کوئی تمنا ہے. میں ایک صرف سدسیہ رہ کر پوری طاقت پوری ہمت کے ساتھ نہ مجھے عہدہ چاہیے، نہ مجھے کوئی کام نہیں چاہیے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین جس عروج پر تھی، فیروز آباد کی عوام کے بیچ میں جو اتحاد تھا، وہاں پہنچا کر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ سے اجازت لے کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں چلا جاؤں گا. لیکن جب تک مجھ پر احتشام علی بابا پر موت حرام ہے، جب تک مجلس اتحاد المسلمین کو اسی بنیاد پر اسی عروج پر نہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، ہر ایک سے معافی نہ مانگ لی جائے، ہر ایک نوجوان کے دلوں کو نہ جیت لیا جائے، جب تک احتشام علی بابا پر میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت تب تک موت مت دینا، یہ مجھ پر موت حرام ہے. اور ان تمام دشمنوں کو، ان تمام ظالموں سے مقابلہ نہ کر لیا جائے جنہوں نے فیروز آباد مجھے دھوکہ دیا اور میرے ذریعے نہ جانے ہزاروں میرے نوجوان بھائیوں کا دل توڑا. ان نوجوانوں کا جنہوں نے مجھے پیروں پر، جن نوجوانوں نے مجھے زمین پر بھی نہیں بیٹھنے دیا تھا، ان نوجوانوں نے جنہوں نے مجھے زمین پر نہیں بیٹھنے دیا تھا، اپنے کندھے پر لے کر گئے تھے. ان نوجوانوں کا میری وجہ سے دل ٹوٹا ہے. جو مجلس اتحاد المسلمین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس پولیس اسٹیشن میں اپنے قائد کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا، اپنے صوبائی صدر کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا. غلطی ہوئی تھی، یقیناً ان نوجوانوں کی کوئی غلطی نہیں تھی جن نوجوانوں نے مجھے کندھے پر لے کر گئے تھے. ایسے ایسے نوجوان تھے کہ جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی تھی، وہ پوری رات میرے ساتھ گزار دیا کرتے تھے دوڑ بھاگ میں. کھانا کوئی لے کر آتا تھا، کوئی کچھ لے کر آتا تھا. یقین مانو نوجوانوں میں تمہارا گنہگار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں تم سے، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نوجوانوں. 4 سال آسانی سے نہیں گزرے ہیں میرے، تمہیں چھوڑ کر میں بھی سکون سے نہیں رہ پایا ہوں. ان سماجوادی والوں نے واقعی میں مجھے دھوکہ دیا ہے بہت بڑا، اور انتقام لوں گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری بنیادی شخصیت کا ساتھ دو، مجھے تمہاری بنیادی شخصیت کا ساتھ نہیں چاہیے. تم مجلس کو کامیاب کر لو، مجلس کو مضبوط کرو. میرے بارے میں مت سوچو میرے ساتھ کیا ہوگا، تم اپنی جماعت کو مضبوط کرو بس، کیونکہ جماعت تمہاری پہچان ہے اور جماعت کو نقصان پہنچایا گیا تھا. یہی تمہاری پہچان تھی، یہی تمہاری پہچان ہے. غلطی انسان سے ہوتی ہے، مجھے بے پناہ غلطی ہوئی ہے، میں اس کی تہہ دل سے معافی، اپنی بہنوں سے معافی چاہتا ہوں. شیتل خواہ میں مجھے اپنے گھر میں روکا کرتے تھے لوگ، ناراض ہے مجھ سے وہ اس بات پر کہ تم نے فیصلہ کیوں لیا، ہم نے اپنی جانوں کو قربان تمہارے لیے لگا دیا. اپنے سینوں کو میرے سامنے نوجوانوں نے لگا دیا تھا. مجھے معاف کرنا نوجوانوں، میں واقعی میں بہت تکلیف میں رہا ہوں، اسی لیے لوٹ کر آیا میں دوبارہ. اگر تم نہیں کہتے تو میں دوبارہ فیروز آباد میں لوٹ کر نہیں آتا. مجھ پر قرض ہے تمہارا، مجھے نہ جماعت کا عہدہ چاہیے، نہ فیروز شاہ ڈگری کالج کے ٹرسٹ میں ادھیک چاہیے. میں سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں تمہارے لیے کام کرنے کے، میرا مقصد صرف تمہیں کامیاب کرنا ہے، اپنے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں کل بھی بھکاری تھا، میں آج بھی بھکاری ہوں. میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. میں نے 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا، میں نے اپنے ایمان کو نہیں بیچا. نوجوانوں، ایمان کا سودا نہیں کیا. اگر میں سودا کر لیتا تو یہ اتنے ظالم ہیں، مجھے زمین میں گاڑ دیتے، قسم خدا کی، یہ مجھے ہلنے نہیں دیتے، یہ مجھے ہلنے نہیں دیتے. ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بابر اگر بات کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ احتشام علی بابر کے ضمیر پر، احتشام علی بابر کے ایمان پر کوئی داغ نہیں ہے. کوئی مائیکل لال یہ بات کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ احتشام علی بابر کے ایمان کو کسی نے خریدا ہو. مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنے کے لیے نوجوانوں، تم جانتے ہو کہ تم سے قرضہ لیا، اپنے لیے نہیں، مجلس کے لیے، مجلس کی خاطر. میں کوئی کروڑپتی انسان نہیں تھا، نہ ہوں میرے بھائی، میں ایک عام آدمی ہوں. لیکن اللہ نے بس اتنی صلاحیت اور ہمت دی تھی کہ تم نے مجھے محبت دی تھی، تم نے بھائی سمجھا تھا مجھے، میری ماں بہنوں نے برابر میں بٹھایا تھا، اپنے گھروں کا کھانا کھلایا تھا، اور وہ محبت مجھے لوٹ کر نہیں جانے دیتی. مطلب میرے بھی سب کچھ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اپنا کاروبار ختم کیا. اور نوجوانوں نے ایسا نہیں ہے میرے لیے کاروبار ختم نہیں کرنا. نہ جانے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار تک ختم کر لیا، کتنے نقصان میں چلے گئے. لہذا نوجوانوں، میں تہہ دل سے تم سے معافی چاہتا ہوں. واقعی میں مجھے ایم ایل اے نہیں بننا، نہ مجھے الیکشن لڑنا ہے میرے بھائی. تم بہتر آدمی نکالو، جس سے تم کہو گے میں اس سے ساتھ میں کھڑا ہوں گا.
तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं बनना है, लेकिन बस मेरी दरखास्त है तुम अपने आप को मजबूत कर लो मेरे भाई। जमात को मजबूत करो, ये जमात तुम्हारी पहचान है। उस कायद को मजबूत करो जो तुम्हारी आवाज उठाता है। मैंने पता नहीं क्या क्या अपने कायद के बारे में कहा है, क्या क्या कहा है। गुस्से में आकर तुम मुझे बकते थे मैं उन्हें बकता था, तुम मुझे बकते थे मैं उन्हें बकता था, याद रखो। लेकिन मेरे कायद ने मुझे माफ किया, मुझसे कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू तकलीफ में है। मेरे कायद ने, मेरे सूबाई सदर ने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं जानता हूं कि तू तकलीफ में रहा है, तू आराम से कहीं नहीं रह सकता था। मैं जानता हूं जिसने अपना खून पसीना बहाकर जमात को इतना आगे लेकर आया हो वो कभी भी जमात से दूर नहीं रह सकता, वो जमात के लिए कभी गलत नहीं कर सकता। मैंने जमात को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, तुमसे मेरी ये शिकायत है, मैं चला गया था, अगर आज बाबर मर जाए तो क्या जमात खत्म हो जाएगी? अगर मैं चला गया था तुम मजबूती से जमात को आगे लेकर चलते, तुम्हें जब मजबूती से इनसे मुकाबला करना चाहिए था अगर मैं चला गया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, तुम क्यों पीछे हट गए? अगर तुम आगे होते तो इनमें से एक भी मजबूत नहीं हो पाता। बहरहाल जो हुआ, माजी में जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पूरी हिम्मत, पूरी जज्बे, जुनून के साथ, नेक नियति के साथ। मुझे इल्जामों की फिक्र नहीं है। देखो मेरे ऊपर शुरू से इल्जाम लगते आए। एहतिशाम अली बाबर को दोबारा माफ करते हुए, जो पहला और आखिरी जो एहतिशाम अली बाबर ने गलती की है, तो पहली और आखिरी बार एहतिशाम अली बाबर को माफ करते हुए क्या कहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, एहतिशाम अली बाबर को मजबूत मत करिए, जमात को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करिए, और फिरोजाबाद के जो तंजीम है, फिरोजाबाद की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नौजवान हैं उन्हें मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम की कामयाबी फिरोजाबाद की कामयाबी होगी, और फिरोजाबाद की कामयाबी उत्तर प्रदेश की कामयाबी होगी, उत्तर प्रदेश की कामयाबी इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क की कामयाबी होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, फिरोजाबाद जिंदाबाद। हर जो भी चाहे वो इसकी सच्चाई जान सकता है कि फिरोज शाह डिग्री कॉलेज और फिरोज शाह ट्रस्ट का क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। ये पूरी आवाम को मुझसे जानने का हक है, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आवाम को उसकी सच्चाई से रूबरू कराऊं, चाहे उसके बीच में किसी को भी नुकसान पहुंचे, चाहे मुझे पहुंचे या किसी और को नुकसान पहुंचे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फ़िरोज़ाबाद में हमने शुरुआत की थी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िरोज़ाबाद में आई थी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को लेकर, उसके पैगाम को लेकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर जब हम फ़िरोज़ाबाद के गली गली और घर घर तक लोगों के सियासी शऊर को बेदार करते हुए लोगों के दिलों पर दस्तक दे रहे थे, अवाम के दिलों पर दस्तक दे रहे थे, उस वक्त एहतिशाम अली बाबर ने डाइस पर खड़े होकर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच पर खड़े होकर फिरोज़ाबाद की आवाम से एक वादा किया था। और वो वादा इसलिए किया था क्योंकि जब मैं फिरोज़ाबाद में आया और नौजवान जब मुझसे मुलाकात होती थी और नौजवानों से जब मैं हाथ मिलाया करता था तो मैं उनसे पूछा करता था कि तुम क्या करते हो, तो फिरोज़ाबाद के नौजवान का 90% तबका जो मुझसे मुलाकात करने आया, उसमें लोग मुझसे उन नौजवानों की ज़बान से और उनके जो जवाब में मेरे पास आता था, जो बात कहते थे, जवाब उनका देते थे, वो जवाब में कहा करते थे कि हम चूड़ी का काम करते हैं, कारखानों में मजदूरी करते हैं, कोई बेलन चलाता है, कोई उसमें जो और चूड़ी कारखाने में बहुत सारे काम होते हैं, उस तरीके से हम वहाँ पर मजदूरी करते हैं। तो मुझे बड़ा इस बात पर हैरत हुई कि फिरोज़ाबाद में जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख करीब 1.5 लाख की शहर में उस वक्त 1,35,000 40,000 के लगभग वोटर लिस्ट थी फिरोज़ाबाद के मुसलमानों की, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 लाख शहर में 2.5 लाख मुसलमान शहर में बसता है। लेकिन जब लिटरेसी रेट देखा गया फिरोज़ाबाद के मुसलमानों का, तो फिरोज़ाबाद के मुसलमान का लिटरेसी रेट बेइंतहा डाउन था, और ख़वातीन का उससे ज़्यादा डाउन था। नौजवान तबके को मजदूरी में लगा दिया गया। नौजवान तबका, हमारा जो नौजवान तबका था वो स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाया, जिसकी वजह से फिरोज़ाबाद में हालात बद से बदतर होते चले गए। उस वक्त देखते हुए मैंने खड़े होकर फिरोज़ाबाद की आवाम से कहा कि फिरोज़ाबाद की आवाम, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला फिरोज़ाबाद के अंदर तालीमी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
पूरी तरह मजबूती के साथ जद्दोजहद करेगी और यहाँ पर एक ऐसा इदारा कायम करेगी जिस इदारे के दरवाजे फिरोजाबाद के हर कौम व मिल्लत के लिए सुबह क़यामत तक खुले रहेंगे। लेकिन क्योंकि हम नए हैं, फिरोजाबाद में एहतशाम अली बाबर नया है, अब भरोसा कौन करता? जाहिर सी बात है, कोई भी चंदा आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं किया, तो ज़मीन के लिए चंदा कैसे करते? इसी बीच में मैंने वादा किया और वादा करने के बाद फिरोजाबाद की आवाम ने पूरी तरह से मुतमईन होकर, फिरोजाबाद की आवाम ने अपनी मोहब्बत के साथ, तमाम जद्दोजहद और मेहनत के साथ फिरोजाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया और उसकी शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन बीच में जो क्या कहते हैं, जो भी मसले रहे, मसाइल रहे कि मैं उसमें नहीं रह पाया, लेकिन उसके बाद मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि फिरोजाबाद में तालीमी मैदान में मैं काम करूं, तालीमी मैदान में मैं फिरोजाबाद के नौजवानों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे फिरोजाबाद के जो अगली आने वाली नस्ल है उसमें तालीम क्या कहते हैं, तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा हों। उसकी वजह यह है कि देखा जाता है कि फिरोजाबाद में एक डिग्री कॉलेज है जो MG रोड पर है, हमारी बहन उसमें बहनें, हमारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, उसमें हमारी बहनों का ज़्यादातर इस 5 साल में मैंने देखा है कि वहाँ की प्रिंसिपल जो साहिबा हैं वो एडमिशन नहीं लेती हैं। और हमारी कितनी बहन, कितने लोगों की मैंने सिफारिश करी है, हमारी कितनी बहन ऐसी थी जिनकी मैंने सिफारिश की है, लेकिन उसके बाद भी एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो जब एडमिशन नहीं हो पाते हैं और फिर इस पर गौर नहीं किया जाता है, 12th क्लास करने के बाद हमारी बहनें और हमारे नौजवान साथी, हमारे नौजवान जो भाई है, तबका है, वो मजदूरी पर जाना, क्या कहते हैं, उसे मजबूरन मजदूरी पर जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास ऐसे वसाइल नहीं हैं, माँ बाप के पास इतनी पैसा नहीं है कि वो आगे ग्रेजुएशन में उन्हें आगे बढ़ा सकें या ग्रेजुएशन के लिए इतना पैसा खर्च कर सकें। हर जिनके पास हैं वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग तो अमेठी से भी करा रहे हैं, अमेठी से भी करा रहे हैं। जो लोग खड़े होकर कहते हैं कि मुझे भीख में 10 रुपए दिए, फलाने ने 10 रुपए चंदे दिए, वो अपने औलादों को अमेठी से 10 लाख रुपए साल की फीस जमा कर कर क्या कहते हैं, बेवकूफ बनाकर, अवाम को बेवकूफ बनाकर अमेठी से अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं। लेकिन अवाम को वहीं के वहीं रखते हैं क्योंकि अवाम के वो नौजवान तबका अगर वहीं के वहीं रहेगा तो सवाल नहीं करेगा, और जब सवाल नहीं करेगा तो अंधों में काना सरदार जो कहलाता है लीडर, वो अंधों में काने सरदार रहेंगे। लिहाजा समाजवादी पार्टी में जब हम गए, उसमें शमशाद बाबा साहब ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये तुम्हें कॉलेज दे रहे हैं, कॉलेज की जमीन दे रहे हैं। मैंने कॉलेज किसी से नहीं मांगा था, बिल्डिंग के लिए मैंने किसी से नहीं कहा था कि तुम बिल्डिंग बनवाओ, मैंने सिर्फ कॉलेज की जमीन मांगी थी। कॉलेज की जमीन गालिब नगर में आरिफ साहब रहते हैं, जाइए, जो लोग ये कहते हैं कि ये झूठ है, गालिब नगर में आरिफ साहब रहते हैं। आरिफ साहब को 8.5 लाख रुपया बतौर बयाना एग्रीमेंट का दिया गया है और उनसे 6 महीने का वादा किया गया था। मौजूदा उस वक्त के सांसद ने 6 महीने के अंदर अंदर कहा, तो क्योंकि एग्रीमेंट 6 महीने से नीचे का, 11 महीने से नीचे का नहीं होता है, लिहाजा उसमें वक्त 6 महीने का खुला था एग्रीमेंट के अंदर, और उसमें कहा गया था कि 6 महीने के अंदर इस जमीन का बैनामा करने के बाद इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला तामीरात, क्या कहते हैं, तामीर का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी और उसके लीडरान ने, और जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, जो ट्रस्ट फिरोज शाह एजुकेशनल ट्रस्ट कायम हुआ है, उस फिरोज शाह एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष एहतशाम अली बाबर है, प्रबंधक समाजवादी पार्टी का मौजूदा महानगर अध्यक्ष है, उसके सदस्य मौजूदा शिकोहाबाद के चेयरमैन हैं, दूसरे सदस्य नौशाद आलम अंसारी साहब हैं, एक सदस्य शारिक सलीम साहब हैं, एक सदस्य शारिक, क्या कहते हैं, अकील सिद्दीकी बुंदू साहब हैं, एक सदस्य साहिब आलम साहब हैं, एक सदस्य असलम रजा गुड्डू, और असलम रजा गुड्डू पार्षद 52 नंबर, ये उस ट्रस्ट में सदस्य हैं और ये पूरी एक कमेटी है। और वो रजिस्टर्ड, सर क्या कहते हैं, फिरोज शाह एजुकेशनल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर्ड होने के बाद उस ट्रस्ट के नाम पर आरिफ साहब की जमीन का एग्रीमेंट, जो जमीन नई आबादी में टंकी के सामने, जिसमें बाग लगा हुआ है, जिसमें जामुन के पेड़ खड़े हुए हैं, जिसमें बेल पत्थर के पेड़ खड़े हुए हैं, 3.5 बीघा जमीन रकबा उस ट्रस्ट के नाम पर एग्रीमेंट हुआ है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है।
اور اس ایگریمنٹ ہوتے وقت موجودہ جو یہ مہانگر ادھیکش ہے سماجوادی پارٹی کا، کیونکہ پربندھک تھے تو ان کا بھی وہاں پر موجودگی ضروری تھی، وہاں پر شارق سلیم صاحب کی موجودگی ضروری تھی، وہاں پر عقیل صدیقی صاحب کی موجودگی ضروری تھی، وہ تمام لوگ اس میں وہاں شامل تھے جس دن ایگریمنٹ ہوا ہے، لہٰذا اس کے بعد میں وہاں پر بنیاد رکھی گئی ہے، اور بنیاد جب رکھی گئی تھی تو چاروں مذاہب کے جو دھرم گرو تھے، ہمارے امام معزز علماء اکرام، ہمارے ایک برہمن، ہمارے پنڈت کیا کہتے ہیں مندر کے پجاری، ہمارے پادری صاحب اور ہمارے ان تمام لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہاں تمام لوگ موجود تھے، لہٰذا جو لوگ اس بات پر کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ احتشام علی بابر جھوٹ بول رہا ہے، تو احتشام علی بابر نے فیروز آباد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر فیروز آباد کی عوام سے ایک الفاظ جھوٹ نہیں بولا ہے، ایک الفاظ جھوٹ نہیں بولا ہے، کیونکہ تمہیں فیروز آباد کی عوام کو برسوں سے گمراہ کرتے چلے آئے ہیں لوگ، اور فیروز آباد کی عوام کے اندر یہ پیدا کیا گیا ہے کہ صرف اور صرف جو لیڈر آئے گا وہ پیسہ کمانے آئے گا، ایک لیڈر کا مقصد صرف دلالی کرنا ہوتا ہے، ایک لیڈر کا مقصد صرف یہی کام کرنا ہوتا ہے، لہذا عادت میں شمار ہو چکا فیروز آباد کی عوام کے اندر، یہ بھر دیا گیا ہے لیڈروں کے ذریعے کہ دیکھو لیڈر کا مطلب صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، لیڈر کا مطلب صرف اپنے گرگوں سے چرس بکوانا ہوتا ہے، لیڈر کا مطلب صرف اپنے گرگوں سے کھری چلانا ہوتا ہے، لیڈر کا مقصد صرف اپنے گرگوں سے سٹہ بازی کرانا ہوتا ہے، لیڈر کا مقصد صرف اپنے گرگوں سے، اپنے چہرے چمچوں سے بے قصور نوجوانوں کو، اگر جو کوئی مخالفت کرے اسے پٹوانا، ٹانگ توڑوانا ہوتا ہے، اسے پٹوا کر جیل پہ بھجوانا ہوتا ہے، یا پھر تھانے میں پولیس سے کہہ کر اٹھوا کر گھر سے اسے پٹوانا ہوتا ہے، یہ ایک عادت میں شمار کر دیا گیا تھا فیروز آباد کے اندر۔ لیکن ہوا کیا، مجھ سے تکلیف کیا ہے فیروز آباد کے تمام لیڈروں کو جو اپنے اندر، جن کے اندر راجنیتی کا کیڑا ہے، جن کے اندر راجنیتی کا کیڑا ہے، انہیں مجھ سے کیا تکلیف ہے، میں آپ کو بالکل واضح طور پر صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ احتشام علی بابر سے ایک تکلیف ہے کہ 1992 سے لے کر سن 2016 میں یہ لونڈا آ گیا، اور اس لونڈے نے ان تمام دونوں خاندان کے گھر کی دہلیز کی جو سیاست لونڈی تھی، اس سیاست کو ان دونوں خاندانوں سے چھین کر فیروز آباد کے نوجوان طبقے کے گھروں کے دہلیز کی لونڈی بنا دیا۔ تو اس لیے سب سے بڑی تکلیف اگر کسی سے ہے تو احتشام علی بابر سے ہے، کیونکہ آج ہر گلی میں ایک نمائندہ کھڑا ہے، ہر گلی میں، فیروز آباد کی ہر گلی میں نوجوان آواز اٹھانے والا کھڑا ہے، ورنہ نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر اس بات کو کھڑے ہو کر کہنا، اس بات کو کہنا کہ سن 2015 میں جب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی اور گڈھے جو کہلاتے ہیں، مسرور گنج کا علاقہ جو کہلاتا ہے، یقین مانو یہاں پر میں تقریر کر رہا تھا، اور میری دوسری تقریر تھی، پوری اپنی زندگی کی دوسری تقریر تھی فیروز آباد کے اندر۔ پہلی تقریر میری صوفی صاحب کی درگاہ کے سیڑھیوں پر ہوئی ہے، اور دوسری تقریر شارق بدر صاحب کے اسکول میں ہوئی ہے، اور اسی دن تقریر میری مسرور گنج میں ہوئی تھی۔ وہ جو تقریر ہوئی تھی وہاں پر بڑے بڑے سورما جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم فیروز آباد کے ذمہ دار ہیں، وہ میرے پاس چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہی وہاں پر چپل چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کے سب سے بڑے جو وہاں پر طاقتور لیڈر تھے پروفیسر رام گوپال یادو جی، جن کے سامنے گھاس اگر وہ اشارہ کر دیتے تھے کہ اگر گھاس کو آگ نہیں پکڑنی ہے تو نہیں پکڑنی ہے، اور اگر وہ اشارہ کرتے تھے کہ فیروز آباد کے پانی میں آگ لگنی ہے تو فیروز آباد کے پانی بھی ابل جاتا تھا۔ وہ اس وقت ان کے حالات یہ تھے۔ تو جتنے بھی لوگ تھے، میں گلی گلی جا کر، محلے محلے جا کر لوگوں کو سمجھاتا تھا، تو پتا ہے کیا جواب آتا تھا؟ آج جو بڑے بڑے ہمدرد بن رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، اور یہ کہتے ہیں، اور یاد رکھو یہ وہی لوگ میری کیا کہتے ہیں مخالفت کرتے تھے جب میں شروعات میں آ کر مجلس اتحاد المسلمین کے دامن کو تھام کر مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام دیا، تو یہی لوگ اس وقت مخالفت کرتے تھے، یہی لوگ تھے جو سماجوادی پارٹی میں مخالفت کی، یہی لوگ تھے جو آج مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دہلیز کی جو سیاست، جو ان کے دہلیز کی جو لونڈی تھی سیاست، وہ ان کے دہلیز سے منہ موڑ چکی ہے۔ وہ فیروز آباد کے نوجوان، ہر نوجوان کے دہلیز کی لونڈی بن چکی ہے، کیونکہ سیاست کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، سیاست ہر ایک نوجوان کا یہ کیا کہتے ہیں ذمہ داری ہے، ہر ایک نوجوان کا حق ہے کہ وہ فیروز آباد کی سرزمین پر بہترین نمائندگی کرے۔ اور یہ چیز، یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں نے دیا ہے،
اور الحمدللہ آج نوجوان فیروزآباد کا ہر مسئلے پر, ہر بنیادی مسائل پر کھڑے ہو کر ان سے سوال کرتا ہے. ہمارے لیڈروں کو, ان لیڈروں کو بڑی تکلیف ہے, یہ کہتے ہیں کہ کاریہ کرتا فیروز آباد میں نہیں ہے, سارے کے سارے لیڈر ہیں. تمہارے لیے کاریہ کرتا نہیں ہے, تمہارے لیے کاریہ کرتا باقی نہیں بچا ہے فیروز آباد. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب گلی گلی میں جایا کرتا تھا, لوگوں سے کہا کرتا تھا, تو کیا کیا الزام نہیں لگائے, کیا کیا الزام نہیں لگائے کہ احتشام علی بابر اتنی دیر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر بول لیتا ہے تو نشہ کر کر بولتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے. میں 3 گھنٹے ایک جگہ کھڑے ہو کر, 3 گھنٹے میں چیلنج کر رہا ہوں, 3 گھنٹے ایک موضوع پر کھڑے ہو کر بولنے کی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے. جس موضوع پر چاہو, چاہے وہ دینی موضوع آ جاؤ, اللہ کے رسول کی سیرت پر آ جاؤ, قرآن کی کسی ایک آیت کی تفسیر پر آ جاؤ, مجھے محنت کرنے کا صرف 1 ہفتہ دو. جس سورہ پر تم یہ چاہو کہ سورہ کی تفسیر پر بولنا ہے, الحمدللہ اللہ رب العزت نے احتشام علی بابر کو اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ جس چیز پر کیا کہتے ہیں چاہوں تو اس چیز پر میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں. اور ٹانگ سے ٹانگ باندھ لینا. الزام لگانے والوں, تم نے طرح طرح کے مجھے بدنام کرنے کے لیے الزام لگائے, لیکن یاد رکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ عزت اور ذلت دینے والا ہے. تم نے لیے کہ ایک شخص نے تو جس دن مجلس اتحاد المسلمین کا آخری جلسہ تھا, میں ویدھان سبھا کا چناو لڑ رہا تھا, ایک شخص نے پیغام دیا 2 دن پہلے کہ احتشام علی بابر بھاجپا کے موجودہ ودھایک اور پرتیاشی سے 10 لاکھ روپے میرے سامنے لے کر آیا ہے. ایک آدمی نے یہ کھڑے ہو کر کہا, اس بے شرم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. میں نے کہا کھڑے ہو کر کہ میں اپنے اولاد کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے, اپنے ضمیر کو بیچا ہے, تو مجھے اور میری نسل کو تباہ و برباد کر دے, ورنہ اس شخص کو اور ورنہ مجھے آباد کر دے. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کھڑے ہو کر کہیں کہ احتشام علی بابر کو جو الزام وہ لگاتے ہیں کہ اس اعمال میں یا اس غلط الزام میں احتشام علی بابر کو شامل دیکھا ہے. چیلنج کر رہا ہوں, تمہارے ماں باپ 10 دن نہیں بچیں گے, گارنٹی دے رہا ہوں. تم جھوٹی قسم کھاؤ, وعدہ کر رہا ہوں تم سے 10 دن میں تمہارے ماں باپ کو اللہ رب العزت اٹھا لے گا. یاد رکھنا اس بات کو. تم ختم تو کھاؤ, میں چاہتا ہوں کہ تم کھڑے ہو کر قسم کھاؤ اور اللہ تمہیں دکھائے, کیونکہ مجھے یقین ہے اس بات پر. میرے باپ کے لیے 2 لوگوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی, میرے باپ پر گینگسٹر لگی تھی اور 2 لوگوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی, اور اپنے ایک نے اپنے دونوں نے قرآن کی قسم کھائی تھی کہ ہم نے کیا کہتے ہیں قمر معظم علی خان کو فلاں جگہ بیٹھ کر بدماشوں سے اور فلاں لوگوں سے تعلق اور بات کرتے دیکھا ہے, جبکہ میرے والد محترم اس وقت باہر تھے. انہوں نے جھوٹی قسم کھائی. اللہ کی قسم 2 مہینے میں دونوں کے بیٹوں کا انتقال ہوا, دونوں کے بیٹوں کا انتقال ہوا. قرآن کی قسم جھوٹی کھائی تھی. فاروق میواتی صاحب, شرم اور حیا رکھو ذرا. میں بولنا نہیں چاہتا آپ کے بارے میں, مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے, میں تمہاری طرح ٹٹپونجیا نیتا نہیں ہوں, سمجھ گئے آپ. انگوچھا ٹانگ کر نیتا گردی نہیں کرتا احتشام علی بابر, اس لیے اپنی حد میں رہ کر بات کرنا. نہ مجھے ایم ایل اے لڑنا ہے اور نہ مجھے ودھایک بننا ہے فیروز آباد کا. میرا مقصد پہلے دن سے فیروز آباد کے نوجوانوں کو آگے بڑھانا تھا اور الحمدللہ آگے بڑھے ہیں. بتاؤ نوجوانوں, فیروز آباد میں اتنے پارشد بنے, کیا میرا بھائی پارشد بنا تھا کوئی سگا؟ کیا یہ کالج میں اپنے لیے بنانا چاہتا تھا؟ اور پھر کمرک والی بگیا میں بھی تو کالج بن رہا تھا, کیا اس میں ایڈمیشن ہونے شروع ہو گئے ہیں؟ پورو ودھایک نے بھی پچھلے الیکشن پر منچوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا, پورو ودھایک نے پچھلے الیکشن پر سن 2017 میں کہا تھا کہ میں بھی ڈگری کالج دوں گا. کون سی جگہ پر ڈگری کالج کا نام و نشان نہیں ہے پورو ودھایک کے نام سے. کمرک والی بگیا میں بننا تھا. کروڑپتی لوگ ہیں الحمدللہ, جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے بنا رہے تھے وہ کروڑپتی لوگ ہیں, کروڑپتی ارب پتی لوگ ہیں. کیا ہوا, کیوں کام رک گیا؟ کیوں کمرک والی بگیا میں جو کام ہوا تھا کیوں رک گیا؟ کیوں کام رکا؟ فیروز آباد کی عوام, نوجوانوں, جتنا احتشام علی بابر سے سوال کرتے ہو, میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو, کیونکہ میں مانتا ہوں تم انہیں لیڈر نہیں مانتے. اب میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, تم مجھے اپنا بھائی مانتے ہو, اس لیے مجھ سے سوال کرتے ہو. ان سے سوال اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ ناپاک لوگ ہیں, انہوں نے غلطی کی ہے, اور تم ان کے کمپیریزن میں مجھے کھڑا نہیں کرتے. یہ میرے لیے اعزاز ہے, میں جانتا ہوں اس بات کو. لیکن وہ لوگ
जो इल्जाम लगाते हैं और तरह तरह के सवाल पूछते हैं, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुम्हारे लीडरों से सवाल कर रहा हूं, क्या हुआ? कमरक वाली बगिया में जो कॉलेज बन रहा था, वो करोड़पति लोग, तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से उन्हें नवाजा है, उसमें एडमिशन शुरू हुआ नहीं हुआ? अगर एडमिशन शुरू हो गया हो तो मैं एक आधे एडमिशन कराना चाहता हूं, बताओ कब से एडमिशन शुरू हो गए हैं? एहतशाम अली बाबर तो गरीब आदमी है, एहतशाम अली बाबर तो लोगों से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी पालता है। एहतशाम अली बाबर के पास क्या है? एक तरफ कहते हो कि लाखों रुपया कमा दिया, एक तरफ कहते हो कि वो तो बिल्कुल नंगा है। अरे भाई कहीं तो रहो, एक जगह तो रहो, एक जगह तो रहो। 5 साल पूरे हो गए, क्यों नहीं बना? मैं तो करोड़पति नहीं था, मैंने तो पहले दिन कहा था भीख मांगकर कॉलेज बनाऊंगा, भीख मांगकर कॉलेज बनाऊंगा, पहले दिन कहा था। लिहाजा मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि फिरोजाबाद में फिरोज शाह एजुकेशनल ट्रस्ट में जो लोग मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के मौजूदा शुकाहाबाद चेयरमैन नौशाद आलम अंसारी साहब और शुकाहाबाद के एक साहब और हैं, उन तमाम इन चारों लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि फिरोज शाह डिग्री कॉलेज के बैनामे के लिए पैसे की जरूरत है। आपके पूर्व सांसद ने धोखा दिया है, आपके लीडरों ने धोखा दिया है, लिहाजा आप ट्रस्ट में मौजूद हैं। आप बराबरी का हिस्सा डालकर बैनामा कराइए उसका, जमीन का। जितना हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा बाकी पैसे में, वो पैसा मैं दूंगा। वो पैसा क्या कहते हैं, बाकी और मेरे रुकन जो साथ हैं, अकील सिद्दीकी साहब, तमाम लोग, हम चाहे भीख मांग कर ला कर दें, लेकिन या तो आप पैसा दीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ नोटिस इशू करके आपको ट्रस्ट से बाहर कर दूंगा। साफ सी बात है, या तो आप पैसा दीजिए या फिर आपको ट्रस्ट से बाहर करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिरोजाबाद के और लोगों को ट्रस्ट में लिया जाएगा जो उसमें ताउन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं फिरोजाबाद में एजुकेशन आए, फिरोजाबाद के बुनियादी मसाइल हल हों और फिरोजाबाद के हमारे नौजवान साथियों को एजुकेशन मिले। और मैं बार बार क्यों कहता हूं ऐसा कौन क्या कहते हैं, मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे भाई तेरा बाप झूठा, क्योंकि मेरे भाई असल बात यह है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि मेरा मकसद यह है, मैं चाहता यह हूं मेरे भाई कि एजुकेशन फिरोजाबाद में आए। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं पहले मना कर चुका हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए फिरोजाबाद के किसी नौजवान को इलेक्शन लड़ाना है। आने वाले वक्त में पार्टी जिसे तय कर देगी, पार्टी जिसे टिकट दे देगी, इंशाअल्लाह ताला उससे इलेक्शन लड़ाया जाएगा। और कॉलेज के लिए हमारी लड़ाई पहले दिन से शुरू थी और अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाएगा, किसी लीडर के सामने ये नहीं कहा जाएगा कि तुम कॉलेज बनवा दो, खुद एक क्या कहते हैं कॉलेज बनवा दो। हमें किसी से कॉलेज की भीख नहीं मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतनी ताकत, इतनी सलाहियत और इतनी जद्दोजहद करने की हिम्मत दी है कि हम एक एक रुपया भीख मांगेंगे और कॉलेज बनाएंगे। हम सब्र करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जब भी बनेगा अब अपने हाथों से बनेगा। हम भीख मांगकर बनाएंगे लेकिन अपनी बुनियाद पर बनाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताना यह चाहता हूं कि ये लोग इस कॉलेज के ट्रस्ट में शामिल थे। आप इनसे सवाल करो कि या तो ये बराबर का पैसा देकर उसका बैनामा कराएं जमीन का, और अगर बैनामा नहीं करा रहे हैं तो इन्हें कोई हक नहीं है उस ट्रस्ट में रहने का। लिहाजा इनके खिलाफ मैं नोटिस इशू करके इन्हें ट्रस्ट से बाहर कर दूंगा। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, फिरोजाबाद के नौजवानों के हाथ में उस ट्रस्ट को थमाने जा रहा हूं। बहुत जल्दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदार हैं उन लोगों के हाथ में इस ट्रस्ट को मैं देने जा रहा हूं और फिरोजाबाद के तमाम उन नौजवानों को ट्रस्ट के हाथ में देने जा रहा हूं, उन बेहतरीन लोगों को देने जा रहा हूं ट्रस्ट, जिन लोगों ने फिरोजाबाद के लिए कुछ किया है, फिरोजाबाद के दिल जो फिरोजाबाद में बेहतरीन काम करते हैं उनके हिस्से में देने जा रहा हूं। लिहाजा मेरा मकसद क्यों कहना चाहता हूं तालीम, मेरे भाई तालीम अकेली ऐसी चीज है जो अपने जोर बाजू पर तरक्की की आला मिसाल कायम करती है, जो इल्म के समंदर में गोते लगाती है और इल्म के इल्म को ऊंचा करती है और ऐलान करती है। और ये और फिर हकीर सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाज पर अपने नाम के ठप्पे लगवाती है और ऐलान करती है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में उजाला, मुझे क्या रोक सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। तुझे फिक्र है अमनो आलम, मुझे अपनी जात का गम, तू तुलू हो रहा है मैं तुलू हो रहा, तू तुलू हो रहा है मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब होने वाला। और याद रखो तारीख गवाह है कि इसी तालीम की बदौलत तारीख गवाह है मेरे भाई कि आपकी परस्तिश करने वालों ने आपको अपने काबू में ले लिया। और फिर क्या था, ऊपर देखा कि चांद, आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया,
पूछा कि माजरा क्या है, जवाब मिला कि इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा तो जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया। जवाब मिला कि क्या पूछा कि माजरा क्या है, जवाब मिला कि इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की आज चीख चीख कर कह रही है कि क्या कहते हैं, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। और याद रखो, तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं मेरे भाई, वो लोगों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जेनर बनते हैं तो एंटीबायोटिक वैक्सीनेशन की इजाद करके लोगों की जिंदगी बचाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब सियासतदान बनते हैं तो नेल्सन मंडेला और इब्राहिम लिंकन बनकर पूरी कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं तो सर सैयद रहमा की शक्ल में पूरी कौम की रहनुमाई करके जीने का नया सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आईटी के मैदान में उतरते हैं तो किसान का बेटा बिल गेट्स हो या गुर्बत का सामना करने वाली हो मादाम क्यूरी, यकीन मानो, और मुसीबतों में रहने के बावजूद भी, मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी पूरी दुनिया को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो यकीन मानो वो स्टीव जॉब्स की सूरत में अब सारी दुनिया को अपनी उंगली का गुलाम बनाकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मईशतदान बनते हैं तो जोनेथन लीवमैन की सूरत में अफ्रीका बाशिंदों की जिंदगी सवार कर जीने का नया सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही की सोच जब उड़ान लेती है तो अखबार बेचकर अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाले वक्त के अब्दुल कलाम बनते हैं, वक्त के अब्दुल कलाम बनते हैं और सारी अपने मुल्क के लिए मिसाइल इजाद करते हैं और सारी दुनिया के ताकतवर मुल्कों में अपने वतन अजीज हिंदुस्तान को लाकर खड़ा कर देते हैं और ऐलान करते हैं कि इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुखरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म सैयारो गहवारो अंजामो नमू, इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबा कोसैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को ही तलब से सिला देता है और जहल इंसान को वो जहल बना देता है। याद रखो, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो एक रास्ता वो जाता है जो हमें इज्जत, शोहरत, दौलत और कामयाबी जहां पर मिलती है वो तालीम का रास्ता है, इल्म का रास्ता है, और एक रास्ता वो है जो अबू जहल का रास्ता है, जहां पर जहालत, क्या कहते हैं, बदतमीजी, तमाम चीजें हमारे कदमों की जीनत बनेगी। और याद रखो, दोनों रास्तों की मंजिल मौत है, और जिस वक्त मौत आएगी जब हम एक अच्छे रास्ते पर, तालीम याफ्ता रास्ते पर, तालीम वाले रास्ते पर जाएंगे, इल्म वाले रास्ते पर जाएंगे, तो याद रखो आने वाली नस्लें तुम्हें अपना आइडल मानेंगी, तुम्हें तारीख के पन्नों में तुम्हारा नाम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। लेकिन वहीं अगर बद रास्ते से जाएंगे, गलत रास्ते से जाएंगे, तो याद रखो आने वाली नस्लें तुम्हें कभी अपना आइडल नहीं मानेंगी। जैसे हिटलर का नाम, मुसलिन का नाम कभी इज्जत के साथ नहीं लिया जाता, यजीद का नाम कभी इज्जत के साथ नहीं लिया जाता, कभी किसी एक अबू जहल के खानदानी का नाम इज्जत के साथ नहीं लिया जाएगा। हमेशा लिया जाएगा तो याद रखो अबू बकर के खानदानी का नाम, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों का, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलफाए राशिदीन और तमाम सहाबा या सैयद रहमा से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने एक बेहतर रास्ता चुना, जो हक का रास्ता चुना, तालीम और इल्म का रास्ता चुना, वो लोग, उन लोगों का नाम तारीख के पन्नों पर लिखा जाता है, वरना तारीख में याद तो किया जाता है, काले अल्फाजों में नाम तो लिखा जाता है, लेकिन उस पर लानत हमेशा अगली नस्ल भेजती है। लिहाजा नौजवानों, आगे बढ़ो और तालीम को आगे लेकर आओ। फिरोजाबाद के अंदर मुझे जाती तौर पर बुनियादी शख्सियत पर, मेरी बुनियादी शख्सियत को तायद करो मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बुनियादी शख्सियत को क्या कहते हैं तायद करो। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और फिरोजाबाद के तमाम उन लोगों की तायद करने की बात कर रहा हूं जो फिरोजाबाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो फिरोजाबाद के लिए कुछ मेहनत करना चाहते हैं, जो और इन तमाम गुंडे, मवाली, बदतमीज, जाहिल और क्या कहते हैं जो परवरिश जिनकी गलत है, जो जिनकी परवरिश ही बदतमीजी में हुई है जाहिलों की, उनकी परवाह मत करो। इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ जहालत है, ये अबू जहल के खानदानी हैं, इनकी परवाह मत करो। जो गाली बके, जिसने मुझे गाली बकी उसने अपनी माँ को गाली बकी, जिसने मुझे बहन की गाली बकी उसने अपनी बहन को गाली बकी, जिसने मुझसे बदतमीजी की उसने बाप से बदतमीजी की, अपने बड़े भाई से बदतमीजी की, उसने अपने खानदानियों से बदतमीजी की। तो मेरे सिंगट्टे पर, मेरी जूती पर इनकी बदतमीजी, मैं इनके ऊपर अपना थूक जाया नहीं करना चाहता। नौजवानों याद रखो, मेरा थूक भी इनकी बदतमीजी से और इन तमाम के तमाम बदतमीजों से ज्यादा कीमती है। मैं अपने ऊपर इतना फख्र करता हूं कि मैं जिस रास्ते पर हूं
याद रखो सर सैयद रहमा इसी रास्ते पर थे, उन्हें तमाम तरह की क्या कहते हैं लानतें भेजी गई, उनके ऊपर तमाम फतवे भेजे गए। अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया, हक का पैगाम दिया, लोगों ने अल्लाह के रसूल को मजनू कहा, इल्जाम लगाए, पता नहीं क्या क्या ना मेरे रसूल को माज़अल्लाह कहा गया। तो याद रखो हक का रास्ता बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत सख्त रास्ता है, उस पर इल्जाम लगेंगे, दलाली का इल्जाम लगेगा, चोरी का इल्जाम लगेगा, बिकने का इल्जाम लगेगा, तुम्हारे जहां पर तुम्हें मतलब डिफीट दी जा सकती हो, जहां तुम्हें बदनाम किया जा सकता हो, जैसे तुम्हें रोका जा सकता हो, याद रखो तुम्हें रोकने की कोई आर्जी तौर पर तुम्हारे रास्तों को रोका जाएगा, हर मुमकिन कोशिश रोकने की जाएगी, लेकिन हक के रास्ते को चुनने वाले कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, कहने वाले को कहने देते हैं। वही एक मिसाल, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और देखो कितने कुत्ते, एक हाथी के आने से कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, हजारों कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर पीस पार्टी को छोड़ना, समाजवादी पार्टी को छोड़ना धोखेबाजी है तो मुझे फकर है मैं धोखेबाज हूं। अगर तुम्हें यही फिक्र है कि धोखेबाजी है तो ठीक है, मुझे फकर है मैं धोखेबाज हूं। तुम्हारे धोखेबाज कहने से मेरे सिंगट्टे पर फर्क नहीं पड़ता, किसी के कुछ कहने पर मेरी जूती पर फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरी पहचान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थी। अरे गुमराह हुआ था, ठीक है, मुझसे गलती हुई थी, खड़े होकर आवाम से माफी मांगी है और खड़े होकर माफी मांगूंगा, पैरों में बैठकर अपने नौजवानों को मनाऊंगा, और देखो मनाकर उन्हीं नौजवानों के, वही नौजवान तुम्हें शिकस्त देंगे, वही नौजवान तुम्हें रुसवा करेंगे, उन्हीं नौजवानों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बेइज्जत कराएगा, उन्हीं नौजवानों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें शिकस्त दिलाएगा। और देखना ज्यादा दिन नहीं है, 2 महीने बाकी हैं, तुम्हें इनकलाब कहते किसे हैं, इस फिरोजाबाद की सरजमी पर यह इनकलाब लाकर दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। याद रखो मैं अल्लाह और उसके रसूल के बाद खुद पर बेपनाह यकीन करता हूं, बेपनाह यकीन रखता हूं, और जो इंसान अपने ऊपर अपने काबिलियत और अपनी सलाहियत और अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखता है, उसका बाल बीका कोई नहीं कर सकता, मेरे लाल कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी, और मैं तमाम अपने मुखालिफिन से कहना चाहता हूं, जितनी ताकत तुम अपने मां का 25वां दूध का 25% भी हक अदा करना चाहते हो, तो तुम्हें कसम है अपने माँ बाप की, तुम्हें कसम है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, मैदान में आकर मेरी मुखालफत करो। एहतशाम अली बाबर अपने आप को आजमाने के लिए तैयार खड़ा है। मैं तुम्हारी मुखालफत से न कल घबराया था न आज घबराया हूं। पूरे तमाम के तमाम बदतमीज जाहिल, तमाम गुंडे मवाली दलाल एक जगह इकट्ठे होकर आ जाओ, एक जगह इकट्ठे हो और आकर मुखालफत करो, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। और देखो किस अंदाज में मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हारे सामने डटकर मुकाबला किया था, तुम्हारे थूक सुखा दिए थे, अब तुम फिर मुकाबला करो। जिस ख्वाब में तुम हो कि तुम ठेकेदारी कर लोगे, तुम चरस बेच लोगे, तुम अपने आका को कामयाब करके, अपने इन तमाम नापाक लीडरों को कामयाब करके तुम इन्हें चरस का कारोबार कर लोगे, तुम अपने खरी चला लोगे, तो वो तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ना नौजवान पूरे होने देगा, ना मैं पूरी होने दूंगा, ना अल्लाह हमारे साथ है। याद रखो किसी सूरत में तुम्हारी, तुम भूल जाओ तुम्हारे आका कभी विधायक नहीं बन पाएंगे फिरोजाबाद से। अरे विधायक तो छोड़ो यार, पार्षद बनने काबिल नहीं छोड़ा जाएगा। मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो सिर्फ चुनाव लड़ाऊंगा पूरे 5 विधानसभा पर, लेकिन छोड़ा कहीं नहीं जाएगा। मैं पहले कह चुका हूं, फिरोजाबाद की इज्जतदार अमन पसंद अवाम से कोई बैर नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी वालों तुम्हारी खैर नहीं। लिख लो मेरी बात, बसपा वालों तुम्हारी खैर नहीं, भाजपा वालों तुम्हारी खैर नहीं। जमहूरी तौर पर अवाम के साथ खड़े होकर तुमसे मुकाबला किया जाएगा। संविधान ने जो हमें हक दिया है, संविधान ने जो हमें हकूक दिए हैं, उसके नाम पर तुम्हारी नाक में नकेल डालकर संविधान के कानून की, आईपीसी की धारा, और संविधान ने जो हमें आर्टिकल 19 का जो कोड़ा दिया है, रस्सी दी है, उसी रस्सी से तुम्हारी नाक में नकेल डालकर, और याद रखो कानून के खूंटे पर तुम्हें बांध दिया जाएगा। तुम्हारी नाक में आर्टिकल 19 की रस्सी डालकर कानून के आईपीसी का जो खूंटा है ना, उसमें तुम्हें बांधा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। लगाओ ताकत। तुम क्या सोचते थे जज्बा खत्म हो गया, जुनून खत्म हो गया तमाम नौजवानों का? अरे नौजवान उबला बैठा है फिरोजाबाद का, मेरी फिक्र मत करो। यार मुझसे नाराज हैं, मैं अपनी नाराजगी को दूर करना जानता हूं। मैं जानता हूं अपने नौजवानों को दूर, नाराजगी को, बहुत सारे नौजवानों की नाराजगी मैं दूर कर चुका हूं। और जो बाकी बचे हैं, 1 महीने में गली गली जाकर, मुझे क्या है, गलती हुई है, माफी मांग रहा हूं, बिल्कुल गलती हुई है, 100% गलती हुई है, नादिम हूं, शर्मसार हूं। और गलती कर माफी मांगना, मुझे कोई, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मुझे फक्र होगा इस बात पर कि मैंने गलती की,
اور میں نے اپنے رب سے بھی معافی مانگی اور اپنے عوام سے بھی معافی مانگی. کیوں؟ کیونکہ میری سمجھ میں یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ عوام کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کے برابر ہے. عوام مجھ سے راضی ہوگی, میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. عوام مجھ سے ناراض ہوگی, میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کیونکہ یہ عوام اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنا یہ باعثیت ایک سیاسی کارکن, باعثیت مسلمان, یہ میری ذمہ داری ہے. لہٰذا تم میرا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. گالی بک سکتے ہو کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں گالی سکھائی ہے, تمہارے ان لیڈروں نے, بدتمیز جاہل لیڈروں نے تمہیں گالی سکھائی ہے, تمہاری پرورش میں گالی ہے, تمہارے کام میں گالی ہے, تمہارے تمام چیزوں میں گالی ہے. اور یاد رکھو, احتشام علی بابر اور احتشام علی بابر کے ساتھ رہنے والے لوگ بدتمیزی اور بہادری کا فرق جانتے ہیں. بدتمیزی اور بہادری کا فرق جانتے ہیں. بدتمیز کبھی بہادر نہیں ہوتا, بزدل ہوتا ہے. بزدل ہوتا ہے, ہمیشہ بدتمیز بزدل ہوتا ہے. میں جانتا ہوں تم کتنے بڑے بزدل ہو, اس لیے فکر مت کرو. فیروز آباد میں تمام نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ 17 تاریخ, یہی 17 تاریخ اتوار والا دن, 17/10/2021 دن بروز اتوار, کوہ نور روڈ پر, اس بار کے کوہ نور روڈ پر انشاءاللہ تعالی دوپہر کے بعد میں سمیکشا میٹنگ مجلس اتحاد المسلمین کی رکھی گئی ہے. تمام نوجوان پوری تعداد میں وہاں جمع ہو. اگلی کیا حکمت عملی کے ساتھ یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری باتیں بتائی جائیں گی, بہت ساری چیزوں پر فیصلہ لیا جائے گا اور آگے کام کرنے کے لیے. اور تمام وہ نوجوان بھی آئیں جن سے مجھ سے ناراض ہیں, وہ نوجوان وہاں پر لے کر آئیں, کیونکہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے گلے مل کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. آپ لوگ میرے بھائی ہیں, جو چھوٹے ہیں وہ مجھے بڑا بھائی سمجھ کر معاف کریں, جو مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھے چھوٹا سمجھ کر معاف کریں. لہٰذا سماجوادی میں گیا میں آپ کے لیے آتا, لیکن میری غلطی یہ تھی کہ مجھے آپ سے پوچھ کر, آپ سے مشورہ لے کر, کیونکہ کالج بنا رہا تھا وہ آپ کے لیے بنا رہا تھا, آپ کی خوشنودی کے لیے تھا. لہٰذا اگر آپ کی خوشنودی یہ تھی کہ بابر کالج بعد میں بنانا, تمہیں معین یا سماجوادی کو چھوڑ کر مت جاؤ, تو باخدا یہ میری غلطی تھی, مجھے ایکسیپٹ ہے. اور میں تمام فیروز آباد کے تمام بڑے چھوٹے بہن بھائی سب سے تہے دل سے معافی چاہتا ہوں, تہے دل سے. اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کریے گا. غلطی انسان سے ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوئی ہے. میں کسی اور کا نام نہیں لوں گا کہ اور لوگوں نے بھی غلطی کی ہے اور 2 لیڈروں نے غلطی کی ہے, کیونکہ یہ بات کہنا میرے لیے بے ایمانی ہوگی, کیونکہ آپ انہیں نکار چکے ہیں. میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا, ان کے بیچ میں سے, ان دونوں کے بیچ میں سے آپ نے مجھے چنا تھا. لہٰذا آپ مجھ سے ہی ناراض ہو سکتے ہیں, آپ مجھے ہی گالی بک سکتے ہیں, آپ مجھ سے ہی کیا کہتے ہیں سزا دے سکتے ہیں. ان لوگوں کو جب آپ نے نکار دیا ہے تو میں آپ کی کیا کہتے ہیں ہر بات ماننے کو تیار ہوں. جیسا آپ انشاءاللہ تعالی آگے کہیں گے میں اسی فیصلے کو کیا جائے گا. مجلس اتحاد المسلمین کا ہر فیصلہ عوام سے پوچھ کر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جو پہلے تھا ویسا ہی رہے گا. غلطی ہوئی ہے, بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. اور سماجوادی پارٹی سے جمہوری طور پر آپ کے سامنے انتقام لیا جائے گا, یہ بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. جو پہلے ہوا تھا وہی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے فیروز آباد کے اندر فیروز شاہ ایجوکیشنل ٹرسٹ میں بہت جلدی انشاءاللہ تعالی وہاں اس کا اکاؤنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں, اور فیروز آباد کے ذمہ دار اس میں بنائے جا رہے ہیں. فیروز آباد کے لوگوں کو میں ذمہ دار بنانے جا رہا ہوں اس ٹرسٹ کا. فیروز آباد کے لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے, مجھے اس میں ادھیکش بھی نہیں رہنا میرے بھائی. میں فیروز آباد کے کسی نوجوان کو جسے عوام کہے اسے ادھیکش بنا دیا جائے گا, اسی کے نام سے وہ کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ اور پربندھک بنا دیا جائے گا. آپ ہی لوگ چلاؤ, میرا کام بھیک مانگنا ہے اس کالج کے لیے. میں بنا کسی شرط کے, بنا کسی چیز کے, مجھے نہ چناؤ لڑنا ہے, نہ مجھے کچھ اور کرنا ہے میرے بھائی, نہ مجھے چناؤ لڑنا ہے, نہ مجھے کالج کا اپنے نام رکھنا ہے, مجھے کچھ نہیں رکھنا ہے. فیروز آباد کی عوام آپ کا مجھ پہ قرض ہے. 11,478 ووٹ آپ نے مجھے دیے تھے, اس کے بعد 57,000 آپ نے ووٹ دیے تھے, 10 پارشد جتائے تھے, تو آپ مجھے حق نہیں بنتا تھا, مجھے ادھیکار نہیں تھا اس بات کا کہ میں آپ کے دلوں سے جذبات سے کھیلتا یا آپ کو ناراض کرتا. یہ مجھے حق نہیں تھا, یہ آپ کا مجھ پر قرض ہے. اس لیے نہ مجھے مجلس اتحاد المسلمین میں کوئی عہدہ چاہیے بھائی, نہ میری خواہش ہے, نہ کوئی تمنا ہے. میں ایک صرف سدسیہ رہ کر پوری طاقت پوری ہمت کے ساتھ, نہ مجھے عہدہ چاہیے, نہ مجھے کوئی کام نہیں چاہیے, لیکن مجلس اتحاد المسلمین جس عروج پر تھی, فیروز آباد کے عوام کے بیچ میں جو اتحاد تھا وہاں پہنچا کر انشاءاللہ تعالی
उसके बाद आपसे इजाजत लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं मुझ पर एहतशाम अली बाबर पर मौत हराम है, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उसी बुनियाद पर, उसी उरूज पर ना लाके खड़ा कर दिया जाए, हर एक से माफी ना मांग ली जाए, हर एक नौजवान के दिलों को ना जीत लिया जाए, जब तक एहतशाम अली बाबर पर मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत तब तक मौत मत देना, ये मुझ पर मौत हराम है। और उन तमाम दुश्मनों को, उन तमाम जालिमों से मुकाबला न कर लिया जाए जिन्होंने फिरोजाबाद मुझे धोखा दिया और मेरे जरिए न जाने हजारों मेरे नौजवान भाइयों का दिल तोड़ा। उन नौजवानों का जिन्होंने मुझे पैरों पर, जिन नौजवानों ने मुझे जमीन पर भी नहीं बैठने दिया था, उन नौजवानों ने जिन्होंने मुझे जमीन पर नहीं बैठने दिया था, अपने कंधे पर लेकर गए थे, उन नौजवानों का मेरी वजह से दिल टूटा है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उस फ्रस्ट्रेशन में अपने कायद को पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, अपने सूबाई सदर को पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। गलती हुई थी, यकीनन उन नौजवानों की कोई गलती नहीं थी जिन नौजवानों ने मुझे कंधे पर लेकर गए थे। ऐसे ऐसे नौजवान थे कि जिनकी नई नई शादियां हुई थी, वो पूरी पूरी रात मेरे साथ गुजार दिया करते थे दौड़ भाग में। खाना कोई लेकर आता था, कोई कुछ लेकर आता था। यकीन मानो नौजवानों में तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं माफी चाहता हूं तुमसे, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ करना। मौत का कोई भरोसा नहीं है नौजवानों। 4 साल आसानी से नहीं गुजरे हैं मेरे, तुम्हें छोड़कर मैं भी सुकून से नहीं रह पाया हूं। इन समाजवादी वालों ने वाकई में मुझे धोखा दिया है बहुत बड़ा, और इंतकाम लूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी बुनियादी शख्सियत का साथ दो, मुझे तुम्हारी बुनियादी शख्सियत का साथ नहीं चाहिए। तुम मजलिस को कामयाब कर लो, मजलिस को मजबूत करो। मेरे बारे में मत सोचो मेरे साथ क्या होगा, तुम अपनी जमात को मजबूत करो बस, क्योंकि जमात तुम्हारी पहचान है और जमात को नुकसान पहुंचाया गया था। यही तुम्हारी पहचान थी, यही तुम्हारी पहचान है। गलती इंसान से होती है, मुझे बेपनाह गलती हुई है, मैं उसकी तहे दिल से माफी, अपनी बहनों से माफी चाहता हूं। शीतल खां में मुझे अपने घर में रोका करते थे लोग, नाराज है मुझसे वो इस बात पर कि तुमने फैसला क्यों लिया, हमने अपनी जान को कुर्बान तुम्हारे लिए लगा दिया। अपने सीनों को मेरे सामने नौजवानों ने लगा दिया था। मुझे माफ करना नौजवानों, मैं वाकई में बहुत तकलीफ में रहा हूं, इसीलिए लौट कर आया मैं दोबारा। अगर तुम नहीं कहते तो मैं दोबारा फिरोजाबाद में लौट कर नहीं आता। मुझ पर कर्ज है तुम्हारा, मुझे न जमात का ओहदा चाहिए, न फिरोज शाह डिग्री कॉलेज के ट्रस्ट में अध्यक्ष चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए काम करने के, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें कामयाब करना है, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कल भी भिखारी था, मैं आज भी भिखारी हूं। मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं। मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया, मैंने अपने ईमान को नहीं बेचा नौजवानों, ईमान का सौदा नहीं किया। अगर मैं सौदा कर लेता तो ये इतने जालिम है, मुझे जमीन में गाड़ देते, कसम खुदा की, ये मुझे हिलने नहीं देते, ये मुझे हिलने नहीं देते। इनके आंखों में आंखें डालकर बाबर अगर बात करता है तो इसलिए करता है कि एहतशाम अली बाबर के ज़मीर पर, एहतशाम अली बाबर के ईमान पर कोई दाग नहीं है। कोई माइकल लाल ये बात खड़े होकर नहीं कह सकता कि एहतशाम अली बाबर के ईमान को किसी ने खरीदा हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करने के लिए नौजवानों, तुम जानते हो कि तुमसे कर्जा लिया, अपने लिए नहीं, मजलिस के लिए, मजलिस की खातिर। मैं कोई करोड़पति इंसान नहीं था, ना हूं मेरे भाई, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन अल्लाह ने बस इतनी सलाहियत और हिम्मत दी थी कि तुमने मुझे मोहब्बत दी थी, तुमने भाई समझा था मुझे, मेरी माँ बहनों ने बराबर में बिठाया था, अपने घरों का खाना खिलाया था, और वो मोहब्बत मुझे लौट कर नहीं जाने देती। मतलब मेरे भी सब कुछ है, बच्चे हैं, बीवी है, अपना कारोबार खत्म किया। और नौजवानों ने ऐसा नहीं है मेरे लिए कारोबार खत्म नहीं करना, न जाने कितने नौजवान हैं जिन्होंने अपना कारोबार तक खत्म कर लिया, कितने नुकसान में चले गए। लिहाजा नौजवानों, मैं तहे दिल से तुमसे माफी चाहता हूं। वाकई में मुझे एमएलए नहीं बनना, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है मेरे भाई। तुम बेहतर आदमी निकालो, जिससे तुम कहोगे मैं उससे साथ में खड़ा हूंगा। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं करने को तैयार हूं। मुझे कुछ नहीं बनना है, लेकिन बस मेरी दरखास्त है, तुम अपने आप को मजबूत कर लो मेरे भाई। जमात को मजबूत करो, ये जमात तुम्हारी पहचान है। उस कायद को मजबूत करो जो तुम्हारी आवाज उठाता है। मैंने पता नहीं क्या क्या अपने कायद के बारे में कहा है, क्या क्या कहा है, गुस्से में आकर
तुम मुझे बकते थे, मैं उन्हें बकता था, तुम मुझे बकते थे, मैं उन्हें बकता था। याद रखो, लेकिन मेरे कायद ने मुझे माफ किया, मुझसे कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू तकलीफ में है। मेरे कायद ने, मेरे सूबाई सदर ने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं जानता हूं कि तू तकलीफ में रहा है, तू आराम से कहीं नहीं रह सकता था। मैं जानता हूं जिसने अपना खून पसीना बहाकर जमात को इतना आगे लेकर आया हो, वो कभी भी जमात से दूर नहीं रह सकता, वो जमात के लिए कभी गलत नहीं कर सकता। मैंने जमात को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, तुमसे मेरी ये शिकायत है, मैं चला गया था, अगर आज बाबर मर जाए तो क्या जमात खत्म हो जाएगी? अगर मैं चला गया था, तुम मजबूती से जमात को आगे लेकर चलते, तुम्हें जब मजबूती से इनसे मुकाबला करना चाहिए था अगर मैं चला गया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, तुम क्यों पीछे हट गए? अगर तुम आगे होते तो इनमें से एक भी मजबूत नहीं हो पाता। बहरहाल जो हुआ, माजी में जो हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूं। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पूरी हिम्मत, पूरी जज्बे, जुनून के साथ, नेक नियति के साथ। मुझे इल्जामों की फिक्र नहीं है। देखो, मेरे ऊपर शुरू से इल्जाम लगते आए हैं, तुम मेरी सच्चाई जानते हो। मेरे साथ में रहने वालों, तमाम जो 50, 60, 70, 100 लोग हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तुम मेरी सच्चाई को जानते हो, तुम मेरे दिल को भी जानते हो। अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा भी है तो मैंने तुम्हें माफ किया है। मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा। मेरे पास इतनी बड़ी तादाद थी नौजवानों की, मैं चाहता कि झगड़े, बड़े बड़े झगड़े करा सकता था, लेकिन मैंने किसी नौजवान को झगड़े के लिए तायद नहीं की। मैंने हमेशा रोका कि नहीं मेरे भाई, आपस में नहीं लड़ना है। कोई मुझे गाली दे रहा है, देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी से कुछ मत कहना। बताओ नौजवानों, क्या ये बात सच नहीं है? लिहाजा नौजवानों, मैं दोबारा तुमसे कह रहा हूं, 17 तारीख को पूरी तादाद के साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला जमात को मजबूत करेंगे। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं इस बात का कि अगर तुमने उसी तरीके से साथ दे दिया तो याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगी, पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना एमएलए निकालेंगे, 5 सीटों को मजबूत करेंगे, 5 सीटों से हम मजबूती से काम लेंगे, मजबूत करके हम अपनी नुमाइंदगी करेंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हमने गुलामी ना की थी, ना हमारी जहनियत में गुलामी है। हम किसी को क्योंकि हमारे पास हमारा लीडर है, हमारे पास हमारी जमात है, कोई बात नहीं। मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी ना जाने कितने लोग इल्जाम लगाते हैं। लोग कहते हैं बीजेपी के एजेंट है तरह तरह के, तो मैं तो एक छोटा सा लीडर हूं। जब इतने बड़े लीडर को नहीं छोड़ते, जो पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज उठाता है, जो हर मसले पर आवाज उठाता है, जब उसे लोग नहीं छोड़ते तो एहतशाम अली बाबर किस खेत की मूली है मेरे भाई? तो एहतशाम अली बाबर पर तो इल्जाम लगने हैं। जो इन दलालों की दलाली को खत्म करेगा, जो इन दलालों को एक्सपोज करेगा, याद रखो उसे दलाल साबित कर दिया जाएगा। और मुझे फख्र है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहकर मैं दलाल हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहकर मुझ पर जो इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह देख रहा है और सबकी मुझे मालूम है, सबके बारे में मुझे मालूम है कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं अपनी जबान से नहीं कहना चाहता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि दूसरों की बुराइयों को ढक दो, ऐसी बुराइयों को जिससे उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता हो, जिससे उसकी बुनियादी शख्सियत को नुकसान पहुंच सकता हो, उस बुराई को सामने मत लाओ। वरना पता तो मुझे भी बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह के खौफ से डरता हूं, लिहाजा मैं उस बातों को छोड़ता हूं, उन बातों को करना नहीं चाहता। आप तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि 17 तारीख को बरोज इतवार कॉलेज वहां पर जिला कार्यालय पर आइए। इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन तरीके से एक इत्तेहाद कायम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिरोजाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम को बुलंद करेंगे। और बहुत जल्दी अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंशाअल्लाह ताला फिरोजाबाद आने की दावत देंगे। और मुझे यकीन है अपने कायद और अपने सूबाई सदर से कि वो बहुत जल्दी हमें फिरोजाबाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम देंगे। और मेरे सूबाई सदर भी यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं, लिहाजा हमारे पास वक्त कम है, काम बेइंतहा ज्यादा है। हमें 5 विधानसभाओं को मजबूत करना है और 5 विधानसभाओं को लड़ना है। लिहाजा जहां जहां तक मेरी आवाज जाती है, जहां जहां तक मेरा पैगाम जाता है, उन तमाम से मेरी क्या कहते हैं दरखास्त है कि एहतशाम अली बाबर को दोबारा माफ करते हुए, जो पहला और आखिरी जो एहतशाम अली बाबर ने गलती की है, तो पहली और आखिरी बार एहतशाम अली बाबर को माफ करते हुए क्या कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। एहतशाम अली बाबर को मजबूत मत करिए, जमात को मजबूत करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करिए। और फिरोजाबाद के जो
تنظیم فیروز کی جو مجلس اتحاد المسلمین میں نوجوان ہیں انہیں مضبوط کریے. انشاءاللہ تعالی ان کی تمام کی کامیابی فیروز آباد کی کامیابی ہوگی, اور فیروز آباد کی کامیابی اتر پردیش کی کامیابی ہوگی, اتر پردیش کی کامیابی انشاءاللہ تعالی پورے ملک کی کامیابی ہوگی. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد, ہندوستان زندہ باد. بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب زندہ باد, شوکت علی صاحب زندہ باد, مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد, فیروز آباد زندہ باد, فیروز آباد کی عوام زندہ باد. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.